یہ ادارہ شہر بنگلور ہی کے اندر نہیں بلکہ ملک کے اندر ایک ممتاز مقام حاصل کرے گا۔ اور یہ بچے جہاں امام، عالم، مؤذن ہوں گے وہی انشاءاللہ دنیاوی تعلیم میں انسپیکٹر، لیکچرر، ریڈر، پروفیسر، IPS، IS بھی بنیں گے۔ مدرسے دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں، یہاں پہ صرف تعلیم ہی تعلیم ہے، انسانیت ہے، اخلاقیت ہے۔ دوسرا جو بچے ڈراپ آؤٹ ہیں کسی مذہب کے بھی ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، کوئی بھی مذہب کے ہوں، ان بچوں کو بھی لے کے ہم تیار کریں گے NIOS کے 10th اسٹینڈرڈ کے ایگزام کے لیے۔ انہیں ظلم مبارک ہو، ہمیں وفا پہ امید، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں۔ الحمدللہ آج جامعہ منہاج العلوم بن شنکری میں دارالخزا اور دینی اور عصری تعلیم کا ایک عظیم شعبہ اس کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ یہ بڑا بہترین اقدام ہے اور آج کے حالات اور تقاضوں کے پیش نظر ضروری بھی ہے۔ آج جہاں ہمارے بچے قوم و ملت کے یہ جو ہمارا مستقبل ہیں، روشن ہیں، ان بچوں کے لیے جہاں ہم دینی تعلیم کا نظم کرتے ہیں وہیں آج ضرورت ہے کہ قوم و ملت کے ان بچوں کو ہم ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں اور پروفیسر بنائیں اور اعلیٰ تعلیم سے ان کو آراستہ کر کے قوم و ملت اور ملک کی خدمت کے لیے ہم ان کو تیار کریں۔ آج مدارس کے طرز تعلیم کو بھی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج کے حالات اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے طرز تعلیم کو بھی بدلنا ضروری ہے۔ الحمدللہ بنگلور ساؤتھ کے بالخصوص بن شنکری کے اس علاقے میں جناب انصر پاشا صاحب اور نیاز پاشا صاحب کی قیادت میں حضرت مولانا محمد شمیم سالک صاحب دامت برکاتہم کی رہبری میں بہت سارے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں، بہت سارا یہاں کام ہو رہا ہے۔ یہاں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے اور دارالقضا بھی ہے اور ان کی سرپرستی میں الحمدللہ ایک بہت بڑا عیدگاہ بھی جس کا تعمیری کام بھی چل رہا ہے۔ یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے جہاں یہ لوگ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ قوم و ملت کے مخیر احباب جیسے عبدالکبیر صاحب ہیں، عبدالرشید صاحب ہیں، ان روشن خیال لوگوں کو ساتھ میں لے کر قوم و ملت کے لیے سماجی فلاحی خدمات بھی یہ انجام دے رہے ہیں۔ تمام مساجد کے ذمہ داروں کو ان سے ایک نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہر ادارے میں، ہر مسجد میں ایسے ذمہ دار احباب ہوں جو قوم و ملت کے لیے بھلائی کے کام کریں۔ ہماری نیک خواہشات اس ادارے کے ساتھ ہیں، یہاں کے ذمہ دار احباب کے ساتھ ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چل کر یہ ادارہ شہر بنگلور ہی کے اندر نہیں بلکہ ملک کے اندر ایک ممتاز مقام حاصل کرے گا۔ عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے مزین کرنے کے لیے ایک مثالی، معیاری اور انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ آج بنگلور میں جامعہ منہاج العلوم اور دارالقضا کے وادی میں ایک اغیار سے ممتاز قدم ہے تو یہ بیزا نہیں ہوگا، کیونکہ آج ہمارا وہی بچہ اگر حفظ مکمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس فاؤنڈیشن سے کبیر صاحب اور عبدالرشید صاحب اور یہاں کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ جناب الحاج ڈاکٹر نیاز پاشا صاحب اور مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا شاکر اللہ رشادی صاحب اور ہمارے پیچھے باوقار قابل احترام علماء کی جمع غفیر، ان تمام کی تائید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے ایک عصری تعلیم کا چشمہ بہے گا جو دور دور تک مساجد کے درمیان یہ تعلیم پھیلے گی اور یہ بچے حافظ ہوں گے تو ادھر SLC پاس بھی ہوں گے، یہ بچے چہارم پنجم میں ہوں گے تو یہ بچے PUC پاس ہوں گے اور یہ بچے جہاں امام، عالم، مؤذن ہوں گے وہی انشاءاللہ دنیاوی تعلیم میں انسپیکٹر، لیکچرر، ریڈر، پروفیسر، IPS، IS بھی بنیں گے اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ جیسے کہ ہمارے کمیٹی والوں نے کہا کہ اگرچہ اس کاموں میں پریشانیاں ہوگی، لوگ ہمارے ہی قوم میں بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو ہمیں دامن گیر ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت فرمائے اور ہمیں ساتھ دیں تاکہ ہم اس تعلیم کو قوم کے اندر عام کر دیں۔ اور ان کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو ظلم مبارک ہو، ہمیں وفا پہ ہے امید۔ جو ہمیں
काम करने वालों को परेशान करते हैं, तो सबसे पहले उनकी हिदायत के लिए मैं दुआ करूंगा कि हम काम करने वालों को काम का मौका देना चाहिए। और हम जब तक काम करते रहेंगे और हमारे शाना बसाना हमारे कौम खड़ी नहीं रहेगी तो क्या होगा, काम में बिगाड़ पैदा होता है, गलतियां हो जाती है, इंसान से खताएं हो जाते हैं, लेकिन इंसान इंसानी तो होता है। इन तमाम चीज़ को सुधारते हुए उन्हें जुल्म मुबारक हो, हमें वफा पे है उम्मीद, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। इंशाअल्लाह हम लैंड मार्क पर और ज़मीनी सतह पे तालीम मैदान में कदम ब कदम आगे बढ़ते रहेंगे और अल्लाह की मदद साथ होगी। और हम तमाम उलमा से गुजारिश करते हैं कि अपने मदारिस अरबिया के अंदर भी जो है दुनियावी तालीम, असरी तालीम, हमारे अब्दुल कबीर साहब जैसे शख्सियतों को पकड़कर इन बच्चों को दुनियावी और दीनी तालीम, मैं तो कहता हूँ कि हर वो तालीम जिस इंसान को इंसानियत को फ़ायदा हो वो तमाम दीनी तालीम है। दुनियावी और दीन कहकर बांटना नहीं चाहिए। हर वो तालीम जिस इंसान को इंसानियत मिले, इंसान को फ़ायदा पहुँचे, वो दीनी तालीम है। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अब्दान व इल्मुल अदियान, कि इल्म दो किस्म के हैं, एक दीन का इल्म है जिससे अल्लाह की मार्फत होती है, एक दुनिया का इल्म है जिससे गैरुल्लाह की मार्फत होती है। जैसे पत्थर से क्या बनाना है, लोहा से क्या बनाना है, धात से क्या बनाना है, पत्ते से कैसी दवाएं बनानी है। तो जितने भी उलूम है जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है वो तमाम अल्लाह का इल्म है। फ़र्क ये है कि दीन के इल्म में अल्लाह की मार्फत होती है और दुनियावी इल्म में अल्लाह के चीज़ों के मार्फत का इल्म होता है, जिसको हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कहते हैं। और ये अच्छी शुरुआत, अच्छा इक़दाम जो मिनहाजुल उलूम, जामिया मिनहाजुल उलूम जो साउथ का मुमताज़ इरादा है वहाँ से आगाज़ हुआ है। अगरचे हम बहुत सारे हालात के शिकार हो गए, हमारे बहुत सारे लोग हमारे भाई दामनगीर हो गए, हम उनको भी माफ़ करते हैं, वो भी हमारे साथ हैं और इस इक़दाम को आगे बढ़ाएं। हम साथ मिलकर कदम ब कदम चलेंगे कौम के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। जो बच्चे हमारे नशाखोर हो गए, ड्रग्स ले रहे हैं, ऐसे बच्चे आए हमारे इदारा में, हमारे कॉलेज में, और दोनों तालीम से बहरावर होकर अपने ज़िंदगी को आरास्ता पैरास्ता करें। ये हमारी गुजारिश और इल्तिजा है। यहाँ पर कई सारे मेहमान रसूल भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ईदगाह है, दारुल ख़ज़ा है, इस तरह की जो नई जो शुरुआत करें इसके बारे में क्या कहें, मॉडर्न एजुकेशन के बारे में? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जैसा कि मौलाना ने बताया और हमारे भाई ने बताया, जैसा कि दोनों ने बताया कि ये कैसा एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसा पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, इन लोगों ने तो तश्कील से बता दिया आपको। सभी का ये कहना है, चंद आप भी सुने हैं कि मदरसे जो है दहशतगर्दी के अड्डे हैं, दहशतगर्दी मदरसों से निकलती है। ये बहुत लोगों ने कहा है, आपने भी सुना है, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको तो भरपूर पता होगा कि इसके बारे में, मदरसों के बारे में आजकल ना जाने किस किस अल्फाज से बात कर रहे हैं। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि मदरसे जो हैं दहशतगर्दी के अड्डे नहीं हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से हम सब उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ तालीम ही तालीम है, इंसानियत है, अखलाकियत है। यहाँ पे दहशतगर्दी का कोई काम नहीं चलता है। यहाँ से मैं ये काम शुरू कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस काम को सारे बेंगलुरु शहर के अंदर इंशाअल्लाह इस काम को हम अंजाम देंगे। हम सब मिलकर सबको ये बता देंगे कि मदरसे जो है अभी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिया जा रहा है। यहाँ पे कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, जो भी दुनियावी तालीम है सभी का यहाँ आगाज़ होगा, सभी को यहाँ पे सबको तालीम दी जाएगी। दीनी तालीम के साथ इस तालीम को कंपलसरी किया जा रहा है या चॉइस पे रखा गया है? इंशाअल्लाह दीनी तालीम के साथ चॉइस पे क्या, हाँ। और जो भी है, देखिए एक मदरसे के जो भी बच्चे फारिग होते हैं, या कोई हाफिज़ बनता है, या कोई आलिम बनता है, कोई मुफ्ती बनता है, उनकी ज़िंदगी वहीं पर थम जाती है। कोई मौज़न बन जाता है, कोई इमाम बन जाता है, ऐसा हो जाता है। अभी इसके साथ साथ हम दुनियावी तालीम भी देंगे तो वो कुछ भी बन सकता है।
IAS बन सकता है, APS बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट सर्वेंट तो बन नहीं सकता है इंशाल्लाह। यहाँ पे जो है वो तालीम दी जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ के जो बुलंदी की आवाज़ उठी है, ये बुलंदी की आवाज़ बहुत दूर दूर तक गूंजेगी, इसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाएगी इंशाल्लाह। इसका रिजल्ट आप सभी को और पूरे हिंदुस्तान को मिलेगा। सर ये तालीम फ्री रहेगी या इसकी कोई फीस रहेगी? नहीं, ये पूरा ताउन है, पूरा फ्री रहेगी। उसमें कोई जो वो आते हैं उनका बस का खर्चा ही बस देना पड़ता है। यहाँ पे उनको खाना भी फ्री मिलेगा इंशाल्लाह, तालीम भी फ्री मिलेगी। यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप भी फ्री मिलेगी। थैंक यू इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे मौलाना साहब ने बतलाया, इंशाल्लाह हम यहाँ पे दुनियाई तालीम देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे अरबी तालीम हासिल कर रहे हैं उनको जो है हम ऑनलाइन दुनियाई तालीम देंगे इंशाअल्लाह, जिससे बच्चों को पढ़ा के 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम NIOS में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है उसमें वो एग्ज़ाम देंगे। और जब वो 10th पास करेंगे इंशाअल्लाह तो उनको 11th एंड 12th पढ़ा के फिर NIOS का वो 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देंगे। और जो 12th पास होंगे इंशाअल्लाह उनको ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई का भी इंतज़ाम यहाँ पे करेंगे। ये सब पढ़ाई ऑनलाइन होंगी, क्योंकि ये ऑनलाइन होगी तो इसको और दूसरे मदारिस में हम बिल्कुल ईज़िली ले जा सकते हैं। ये पहला मदरसा है जहाँ पे हम ये इंशाल्लाह काम शुरू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो मदरसे हमसे जुड़ेंगे वहाँ भी हम ऑनलाइन तालीम जो है 10th स्टैंडर्ड के लिए, 12th के लिए और ग्रेजुएशन के लिए इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सर आपने NIOS का आपने जिक्र किया था जो IGNOU और KSU के तर्ज पे काम करती है, क्या ये फैसिलिटी सिर्फ इस मदारिस के लिए कर्नाटक के कोई भी वैसा लड़का या लड़की जो 16 साल की उम्र पार कर चुके हों, जो तालीम नहीं हासिल, वो भी आपसे राबिता कर सकते हैं? राइट। एक्चुअली हम ये हमारा प्रोग्राम 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। ये किए हैं जो मदारिस में जो है हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि मदरसे के बच्चे मॉडर्न तालीम हासिल करें और एग्ज़ाम करें, जैसा मैं आपको बताया। और दूसरा जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, किसी मज़हब के भी हों, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी मज़हब के हों, उन बच्चों को भी लेके हम तैयार करेंगे NIOS के 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम के लिए और 12th के लिए, और इंशाअल्लाह IGNOU के ग्रेजुएशन के लिए उसका इंतज़ाम करेंगे। एंड ये सबके लिए ओपन है, ड्रॉप आउट्स के लिए भी। सर NIOS स्टेट बोर्ड में आता है या CBSE में आता है या किस NIOS CBSE में आता है, CBSE में आता है। नेशनल लेवल। पहला प्रोग्राम है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू कर दें पहले, ताकि एक हद तक आ जाए, 1-2 महीने 3 महीने, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करके फिर नेक्स्ट क्या प्रोग्राम बनेगा हमारा वो स्पेसिफिकली आपको बताएंगे, तो वो हिसाब से आप काम करें। में कितने मदारिस में मंसूबा है? ये पहले मदारिस है, पहले इसके बाद भी होंगे इंशाल्लाह। है कि बहुत बर्डन हो जाता है बच्चों के ऊपर, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते। अब यहाँ पर दीन के इल्म के साथ दुनिया का इल्म भी मदरसे के तलबा पढ़ना, क्या उनके लिए कोई मुश्किलात हैं या कोई आसानियाँ हैं? आपने पूछा कि कहें दोनों तालीम तलबा पर बोझ तो नहीं बन जाएगी। इसका आसान जवाब ये है, जो टेक्नोलॉजी है, आज जो बच्चे जो शार्प हुए हैं, जो चालाक हैं और मदरसे में 24 घंटे का निज़ाम रहता है, अगर सही दोनों तालीम की तत्वीक दी जाए, जैसा कि सैयद अब्दुल कबीर साहब फरमा रहे हैं, दोनों को लेकर चलने का एक निज़ाम बनाया जा रहा है, ऑनलाइन तालीम की तरतीब बनाई जा रही है। तो दारुल इकामा और हॉस्टल रेजिडेंशियल इदारा होने की वजह से तलबा पर उतना बोझ नहीं होगा जितना हम समझते हैं। और मैं समझता हूँ दीनी तालीम, असली तालीम की तकसीम को मिटा देकर कोई एक नई इस्तिलाह हो, तालीम ही रहे। और मेरी एक सोच है, मैं समझता हूँ कि दीनी तालीम इबादत है, असली तालीम ज़रूरत है। आज हम जहाँ होते हैं वहाँ की मकामी ज़बान पर बात करते हैं तो हमारे आधे मसले ऐसे ही हल हो जाते हैं। ज़बान न समझने की वजह से मसाइल बिगड़ते हैं, मुश्किलात मज़ीद पैदा होती हैं। रब करीम अपने कलाम पाक के ज़रिए
لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو جس کا قدم ثابت قدمی سے جو آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس ادارے جامعہ منہاج العلوم کے پریزیڈنٹ فاؤنڈر جناب نیاز صاحب ہو اور ہمارے جنرل سیکرٹری جامعہ منہاج العلوم کے ڈاکٹر شمیم صالح صاحب ہو یا یہاں کے ہر تمام انصر صاحب ہو، جتنے بھی ہمارے رفقا ہیں اور ہمارے ڈاکٹر ندیم صاحب ہو اور انور صاحب ہو اور شریف صاحب ہو، یہ تمام مل کر جہاں بھی ہم قدم بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے قدم کو اور مضبوط کر رہے ہیں اور مضبوط کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ہمارا تعاون کر رہے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے، احسان ہے ہمارے ساتھ۔ جس طرح ہمارے بار بار تقریر میں ہمارے ڈاکٹر نیاز صاحب نے صدر صاحب نے فرما رہے تھے کہ ہمارے سر جڑ رہے ہیں، اسی طرح الحمدللہ آج نئے سر اور نئے امنگ اور نئے فکروں کے ساتھ ہمارے ساتھ دو بھائی جناب کبیر صاحب ہیں اور عبدالرشید صاحب ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ قوم و ملت کی فکریں لے کر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارا بھرپور تعاون کرنے کا انہوں نے مسمم ارادہ کیا ہے اور ہمارے قدم سے قدم ملا رہے ہیں۔